Hello friends, welcome to the platform of Darshanik. This is Akshay Kadam. So guys, today on this platform of Darshanik, I'm going to discuss with you one UPSC preparation strategy. Okay, that is how to prepare for UPSC from college days. So guys, I have been teaching for UPSC for last 8-9 years, and most frequently I came across this question, mostly from parents and even from some students who are very sincere and they want to prepare for UPSC quite early. They don't want to wait for graduation to complete and then start actual preparation of UPSC. And most of these parents or students then when ask me this question, whatever tips I tell them, I decided to record a video about it, that how you can take some steps or what strategy you need to follow from college days, what you should be investing in while you are in 11th, 12th or college days, so you will be in a good stand or comfortable position when you prepare for UPSC, when you actually start preparing for UPSC. And first thing guys, I will tell you or I would like to tell you that don't buy any UPSC books and start reading from them directly. Okay, this will be a very useless strategy. Why? Because guys, UPSC has changed its syllabus in 2013, and largely if you see last 8-10 years of paper, then you will realize compared to previous exam that used to happen in old syllabus and in new syllabus, exam is now extremely dynamic, exam is extremely what do you call, reasoning based it has become, and it is extremely dynamic and it has tremendous focus on current affair. Even all your polity, history or many questions have the current affair edge. And because of that guys, okay, you if you directly invest or start investing your energy into something directly related with the syllabus, and if you are going to appear for UPSC after 4-3 years gap, okay, then it won't be that productive. So here I am going to tell you that what basic skill sets that you will need when you will appear for UPSC, which you need to develop or focus right now from. And so in this lecture, I will be giving you some tips that I think from my experience will be of very use or will be very useful for you when you will start preparing for UPSC. And so the more you sweat in times of peace, the less you bleed in war. So better you start preparing now, you start working on some skill sets now, and then when you will actually appear for examination, then you will realize that you already are very well prepared on these basic parameters which other your friends or competitors are not ready with, and that will give you very strategic edge in your examination. And that's why, okay, the more you sweat in peace times, the less you bleed in war. So how to start preparation early for UPSC? So isme guys, largely your focus that I will tell you should have is on those skills that you won't be able to improve in a coaching institute. You need to focus on those skills that you won't be able to improve in 1 year or 2 year of your preparation. When you come to UPSC and then realize that I like this skill set and this is very important part of preparation and I need to focus on this skill sets, and now uske baad if you spend 2 3 4 years in developing those, that will be very costly. And many skill set guys, everything is not based on coaching institute. Though I teach for UPSC, I work for many coaching institutes across Delhi or in India per se. But I will not say that coaching is the answer for all your preparation or for your success or result. Had that been case, then सारे top institute जो है दिल्ली के सारे उनके students select होने चाहिए. But that is not the case. Many from regional coaching institute also students get selected. And many, that's why guys, that's coaching is yes, 40% is part of your preparation. 33% weightage is I will give you to the coaching, because you need to have good coaching, good material, good content. That is also very important part. But rest 33% guys is your own personality, the strategies you use, skill set you use, etc. And then 33%, okay, is your efforts. So strategy, that whatever you are preparing, just if you have effort, it is not going to help you. You need a strategy also. And the way strategically you are preparing, because everyone who is coming for UPSC, okay, most of them get the coaching, most of them are very hardworking. So strategy is also very important part. And so in this lecture, I'm going to focus on this strategy aspect, okay, that you need to develop right now from, you need to work from strategically, and that will definitely help you when you actually appear for UPSC exam. And so my core focus will be telling you that which skill sets that will help you in exam later on,
that you need to work on right now from, because these skill sets don't develop in a year or two, or definitely not just by attending a coaching institute. या वो डेवलप होंगे, यू कैन ऑलवेज डेवलप देम लेटर इन लेटर स्टेज, बट उसके लिए फिर टाइम जो कंज्यूम होगा, दैट यू कैन एबल टू सेव इट इफ यू आर प्रिपेयरिंग early and work sincerely on those aspects. So first thing that you should do, the tips to remember for UPSC preparation from college days, and not only UPSC preparation, for any competitive exam preparation, you need to develop those skill sets. So my focus will be largely from competitive exam perspective, that if you want to prepare even for state civil services exam, what do's don'ts you should do if you want to prepare early. So major focus should be on skills which take time to develop. And one of the major skill set or time that you will take to develop was this first point, is a reflective analysis or reflection of the topic, analysis of the topic, or thinking or broadening your perspective. And second aspect that will take time to develop is developing good English, because 1750 marks ka your mains exam is only about writing. And so without good English, and if you are preparing or appearing in regional languages, then even in regional languages you need to have very good command over a subject. You should be able to communicate very fluently, and many students who prepare for UPSC competitive exam don't have the facility where they got very good education in schooling days, college days, or some international schools or so on. Mostly students are from rural background or from suburb areas, or largely or mostly students are educated from ZP schools. Then most of them struggle with the basic English aspect also. So that you need to develop, because that you won't be able to improve when you really start preparing in those years. So obviously if you have 2-3 years time, and if you work strategically and efficiently, definitely you will be able to improve that aspect. So first guys, so English part that I will come later, but first guys, develop reflective analytical thinking. Okay, broaden your perspective, because this is guys UPSC का जो exam change हुआ, one of the biggest demand from new syllabus pattern that UPSC has have from you is that you need to have extreme good reasoning ability, reflective mentality, analytical mentality. Okay, that's, and you need to have very wide perspective to look at the things. ये जो old syllabus था guys, in that old syllabus, okay, large focus was on rote memorization. दो optional paper थे 1200 marks के, history, geography, any two optional you take, and 7, 8, 10 years you are preparing for those optionals. Obviously you will be able to get or crack exam without having good reflection of the topic, analysis of the topic, etc. Or largely prelim, maybe there was one GK paper and one optional paper. CSAT wasn't there. But now today CSAT is a game changer. Many students couldn't clear prelims because they don't have good reflective analysis, reasoning ability, quantitative aptitude, etc. और वो जो aptitude का part है, reasoning का part है, CSAT का part है, you won't be able to improve, okay, very later on कि coaching institute करके CSAT suddenly बहुत quickly improve हुआ. It will improve, but it will take effort, it will need time. So अभी से if you start working in this manner कि थोड़े puzzle solving related example solve करो, etc. as a just for fun, for a time pass. B, you are preparing indirectly or developing yourself for the CSAT. And not only you need that reflective analytic ability in CSAT, you need this reflective analytical ability even in your GKK papers में. Now they don't want IAS officer who are doing the rote learning and can't solve the problems of India. They want IAS IPS officers who are extremely dynamic, who could solve the problems. अब ऐसे ऑफिसर्स या जो ओल्ड एग्जाम में जो रोट लर्निंग पे फोकस होता था, मोस्ट ऑफ देम कैन ओनली अंडरस्टैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया विदाउट नोइंग हाउ आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया. एंड द प्रॉब्लम्स आर टुडे आर ऑफ एक्सट्रीमली वैरिड नेचर. ये जो सारा डिजिटाइजेशन इज गोइंग ऑन, साइबर क्राइम से लेके ऑल न्यू थिंग्स आर गोइंग ऑन. एंड इफ यूर IPS ऑफिसर हु आर नॉट हैंडी विद द टेक्नोलॉजी और कांट डेवलप और इवॉल्व हिमसेल्फ विद द टेक्नोलॉजी, देन यू विल बी costing the government to the people in a very bad way. And that's why UPSC में all question they are asking is reasoning based. They stop asking ki what are the reasons for 1857 revolt. Now they ask reasoning based question that 1857 was watershed. Explain, critically analyze. So all these questions demand extreme reflection over the topic, analysis of the topic, okay, and even your essay paper.
They are asking you extremely tough essay topics which need very good reflection on that essay ka quote or analysis, in-depth analysis or very broad multi-dimensional analysis of the topics. And you need to, that's why, focus more on this skill if you are preparing early from 11-12, because ये skills developing suddenly is not possible. और ये फिर skill develop करना is like a lifestyle. आप कोई भी चीजें पढ़ रहे हो, इवन इफ यू कम अक्रॉस इन इंस्टाग्राम रील एटसेट्रा, ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट, हाउ इट इज एप्लीकेबल टू माई डे टू डे लाइफ. कोई भी न्यूज पढ़ रहे हो, कोई इवेंट भी देख रहे हो, जस्ट कीप अ क्वेश्चनिंग माइंडसेट, ओपन माइंडसेट. सड़क पे चलते चलते आपने कोई बिस्किट का पैक भी खरीदा, उस पर कुछ रैपर पे कुछ लिखा है, बी केयरफुल अबाउट द थिंग्स, रीड उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है एटसेट्रा. बहुत छोटी छोटी चीजें, स्टार्ट नोटिसिंग, एनालाइजिंग. यू नीड टू लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल. एंड दैट्स व्हाई गाइज, डेवलप दिस रिफ्लेक्टिव एनालिटिकल थिंकिंग, ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव. और उसके लिए बेस्ट वे इज स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स. नॉवेल्स में जो द वे ऑथर्स राइट द नॉवेल्स, दे मेक यू थिंक इन अ वेरी वाइडर मैनर, दे ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव ट्रिमेंडसली. और इसलिए एक नॉवेल पढ़ के ही जो आपका थिंकिंग पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होगा, वो इंस्टाग्राम के 2-2 मिनट के रील से नहीं होगा. Okay, you need to invest your energy, put your energy into proper, channelize it in a proper ways. And best way to develop this reflective analysis is start reading novels. Now, which novels you should read for UPSC? For that, I have already recorded separate lecture. So do check that lecture out, where I have given some important novels. That's not all the list, complete list, but I have added or given some list of important topic novels that you should read. So if you have time now, you should focus on reading those novels. उसमें से 7-8 भी novels, I have given list of more than 25-30 novels or books, important books. उसमें से 8-10 भी बुक पढ़ लो ना, still guys, it will help you tremendously. कोई भी randomly अलग अलग टॉपिक के 7-8 बुक ले लो. Okay, one from history like गांधी बेस्ड कोई बुक हो, कोई एक साइंस रिलेटेड बुक हो, हिस्ट्री रिलेटेड कोई बुक हो, इस तरह से अलग अलग. कोई सिर्फ फिक्शनल भी कोई बुक हो, इंटरेस्टिंग वन. लेकिन ऐसी किताबें पढ़ो, इट विल इंप्रूव योर इंग्लिश ऑल्सो एंड इट विल हेल्प यू थिंक इन अ वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. तो उसके लिए आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेपरेट लेक्चर that has been recorded, which novels that you should prepare for developing good essay content, to build good essay content. Then watch YouTube channels. ओके, तो इसके लिए भी मैंने सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड किया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल्स और हाउ यू कैन हार्नेस द एनर्जी ऑफ यूट्यूब टू एंड चैनलाइज इट इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन. तो यूट्यूब के भी कौन से इंपॉर्टेंट चैनल्स, विच डिबेट्स टू वॉच एटसेट्रा, दैट आई हैव रिकॉर्डेड सेपरेटली. सो उस पर भी अभी से काम कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग इन टू यूपीएससी का कंटेंट, एक ब्रॉड लेवल पे यू शुड स्टार्ट लिसनिंग टू द पीपल, ओपन एंडेड. कि कहीं रघुराम राजन का भी लल्लन टॉप पे एक इंटरव्यू हुआ, लिसन टू दैट इंटरव्यू, गेट सम इनसाइट्स. Okay, learn what is happening around the world. अभी से बहुत सारे people will say कि पहली टिप होती है कि start reading newspaper. I don't think it's possible guys. Psychologically वो हैबिट डेवलप करा कि न्यूज़पेपर डेली रीड करो 2-3 घंटे बैठ के. व्हेन यू आर इन यूपीएससी प्रिपरेशन फेज, उस टाइम पढ़ो, उस टाइम ज़्यादा करंट अफेयर अपडेटेड रहना पड़ेगा आपको. दैट विल हेल्प यू देन. अभी उतनी कंसिस्टेंसी भी नहीं रहेगी. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉलेज एग्जाम्स, अदर एस्पेक्ट्स. तो एक आप न्यूज़पेपर पढ़ो एंड इफ यू कुड डू इट एंड डू इट कंसिस्टेंटली, इट्स अ गुड थिंग. लेकिन आधा एक घंटे यू हैव अ हैबिट ऑफ वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियोज, लंच करते वक्त, डिनर करते वक्त, ट्रैवल करते वक्त, एंड यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट दिस डिबेट्स, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. ये जो बहुत लीजेंडरी लोग हैं लाइक रघुराम राजन, अमर्त्य सेन, या बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट भी है, शेखर गुप्ता, करण थापर से लेके पलकी शर्मा उपाध्याय एटसेट्रा. तो उनके न्यूज़ वीडियोस भी आप रहते हो. जस्ट कीप योर सेल्फ अपडेटेड कि क्या हो रहा है सराउंडिंग में, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, और इन चीज़ों का ग्लोबल इंप्लीकेशन क्या एटसेट्रा. और कहीं पे भी स्टॉक मार्केट भी गिर गया अचानक से. ओके, वाई स्टॉक मार्केट फेल डाउन, स्टॉक मार्केट ऊपर भी गया, वाई इट वेंट अप, क्या इसका रीजन है. फिर अमेरिका ने कुछ किया रिगार्डिंग क्वांटिटी ईजिंग और बॉन्ड प्राइसेस में, उनके बॉन्ड प्राइसेस से मेरे यहाँ का स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर नीचे जा रहा है, हाउ इट इज इंपैक्टिंग एफडीआई एफआईआई फ्लोज. तो एक बेसिक भी अवेयरनेस आप चीज़ों का रखोगे, दैट विल हेल्प यू ट्रिमेंडसली लेटर ऑन. ओके, यू वोंट बी एंटरिंग यूपीएससी ऑन अ ब्लैंक स्लेट. तो ये बेसिक अवेयरनेस आपको डेवलप करना है. तो यू डिड नॉट टेक अ न्यूज़पेपर एंड स्टार्ट रीडिंग, वो भी करो तो भी अच्छी बात है. बट लार्जली अगर आपको इफिशिएंटली वो करना है एंड एंटरटेनिंग मैनर से करना है, देन
वॉच मोर यूट्यूब चैनल्स, और यूट्यूब में भी वो होपलेस इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स देख पे टाइम वेस्ट मत करो. सेंसेशनल कंटेंट, एक रियल गुड क्वालिटी कंटेंट देखो. एंड आई हैव रिकॉर्डेड सेपरेट वीडियो फॉर दैट. यू कैन चेक ऑन माय यूट्यूब चैनल विच नॉवेल्स टू रीड और विच books to read and channels, YouTube channels to watch. So do check that out. Then, and especially focus on UPSC channels and listen to more debates. Okay, राज्यसभा टीवी पे बहुत सारी डिबेट्स होती है अबाउट द इंटरनेशनल इश्यूज और जो भी पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज है, तो डिबेट्स को सुनो. डजंट मैटर गाइस कि आप जब यूपीएससी प्रिपेयर करोगे, वो जो पॉलिसी है, वो जो टॉपिक है, माइट हैव बीन एंडेड. यूक्रेन रशिया का वॉर टोटली फिनिश हुआ होगा, इजराइल पैलेस्टाइन वॉर टोटली फिनिश हुआ होगा, बट इस डिबेट्स में आपको जो एक इंसाइट्स आएंगी कि टॉपिक को कैसे देखना है, हाउ टू एनालाइज द टॉपिक, रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक, दैट विल हेल्प यू ट्रिमेंडसली. और बहुत सारी न्यूज़ है, लाइक कतार में अभी हमारे बहुत सारे नेवी के कुछ ऑफिसर्स थे रिटायर्ड, उनको अरेस्ट किया गया, डेथ पेनल्टी हुई, बाद में डेथ पेनल्टी हैज बीन कन्वर्टेड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट. तो आपको सिर्फ बेसिक चीजें जाननी है कि क्या वो स्पाई कर रहे थे, कतार में हमारा कौन सा इंटरेस्ट है, व्हाई इंडियन गवर्नमेंट वाज इंटरेस्टेड इन कतार, अगर एक्विजिशन ट्रू है, ओके, तो व्हाट दिस पीपल वेर स्पाइंग ऑन इन एग्जैक्टली इन कतार. कतार से तो हमारी कोई हॉस्टिलिटी नहीं है. तो ऐसी बेसिक अवेयरनेस, कुछ ज्यादा उसके ऊपर जानने की आपको जरूरत नहीं है. ओके, सो ये जो है, क्या इन अभी जो उनकी अरेस्ट हुई, इनके खिलाफ गवर्नमेंट इंटरनेशनल कोर्ट में वो मैटर लेके जा सकता है, नहीं जा सकता है, इज दैट एबिलिटी और पावर इज अवेलेबल. तो इंटरनेशनल कोर्ट में भी मैटर जाता है, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है टू गो टू इंटरनेशनल कोर्ट. तो जस्ट बेसिक अवेयरनेस. उसके बाद यू डोंट हैव टू गो टू मच इन टेक्निकलिटी पार्ट. आप जब एक्चुअल प्रिपरेशन में उतरोगे, उस टाइम जो करंट अफेयर्स के इवेंट चल रहे हैं उनके बारे में दैट यू विल हैव. बट आपको सिर्फ वो एक मेंटल पैटर्न डेवलप करना है टू लुक एट द वर्ल्ड. सो उसके लिए स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स, इट विल हेल्प यू डेवलप दिस रिफ्लेक्टिव एनालिटिक एनालिसिस. यूट्यूब चैनल्स विल ऑल्सो ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव ट्रिमेंडसली. और यूट्यूब पे फिर इलॉन मस्क को सुनो, जुकरबर्ग को सुनो, सुंदर पिचाई को सुनो. जस्ट लिसन ओपन एंडेड, बट ये थोड़े एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को. ओके, वरना तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सेंसेशनल कंटेंट है, यूजलेस कंटेंट है. सो कोई भी कंटेंट पढ़ने से पहले जस्ट कीप इन माइंड वेदर दैट पर्सन इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज टू टेल यू दैट थिंग. इफ इज नॉट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, डोंट वेस्ट लिसनिंग टू दोज पीपल. ओके, बिकॉज यूपीएससी को wants real content, not some मसाला, ओके, सेंसेशनल कंटेंट. तो वो फिल्टरिंग एबिलिटी आप में होनी चाहिए, कौन सा कंटेंट यूपीएससी काम आने वाला है. और वैसे ही यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब डिबेट्स को सुनो. जनरली यूपीएससी चैनल्स भी उन पे जो लेक्चर्स हैं उनको भी सुनो. देन लेवरेज टेक्नोलॉजी टू योर फुल पोटेंशियल, बिकॉज यू डार्विन का बेसिक लॉ है गाइज, यू नीड टू इवॉल्व विद द टाइम एंड टेक्नोलॉजी. Okay, the way it is evolving, you need to evolve yourself with the technology. So YouTube पे या बाकी जो भी टेक्नोलॉजी है, harness to the full extent. Okay, आपको जो when you are traveling, you can use the technology. Then use the technology. रात को सो भी रहे हो, सोते सोते I will record YouTube का कोई वीडियो या डाउनलोड some content और वो प्ले करके सुनते रहूँगा. सो जहां जहां पॉसिबल हो, वेयर यू कैन इफिशिएंटली यूज योर टेक्नोलॉजी, स्टार्ट यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू फुल यूज फॉर योर प्रिपरेशन. देन लिसन टू टॉपर्स इंटरव्यू, ये भी बहुत काम की चीज है गाइस. उसके साथ जब आप यूपीएससी में बहुत सारे ये गुड क्वालिटी कंटेंट ऑफ गुड पीपल, फिर रतन टाटा जैसे लोग, उनके भी इंटरव्यू वगैरह सुन के बहुत सारा कंटेंट आपको डेवलप होगा. बट उसी के साथ गाइस, टॉपर जिन्होंने ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम क्रैक की है, उनके इंटरव्यू पढ़ो. और बहुत सारे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वो जो मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उनके जो शॉर्ट्स वीडियो बना के आप यूट्यूब पे आएंगे, वो सुनना टाइम पास के लिए अच्छा लगता है, सेंसेशनल लगता है, वो वाले. बट दे हैव इफेक्टिवली नो यूटिलिटी, ओके, फॉर योर प्रिपरेशन. सो जो इंटरव्यू उनका पूरा ब्रॉड इंटरव्यू होता है 1-1.5 घंटे का, वो ज़्यादा सुनो. और वो जो ब्रॉड इंटरव्यू आप सुन रहे हो जिन्होंने एग्जाम क्रैक की है, या उनके जो सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे ऑफलाइन सेमिनार्स होते हैं, ट्राई अटेंडिंग मैक्सिमम सेमिनार्स दैट यू कैन. आपके कोई किसी एरिया में, जहाँ जिस भी सिटी में हो, कोई वहाँ से कोई एग्जाम क्रैक कर चुका है, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, ओके, उनके एडमिशंस वगैरह बढ़ाने के लिए. फिर भी एडमिशन लो ना लो आपके आगे एडिशन, बट ऐसे सेमिनार जाके अटेंड करो. ओके, दो सेमिनार्स विल हेल्प यू ट्रिमेंडसली टू गेट अपडेटेड कि क्या हो रहा है दिस यूपीएससी की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इन लोगों ने कैसे प्रिपेयर किया. बहुत सारे इंटरव्यू ऑनलाइन भी मिलते हैं, तो ऐसे ब्रॉड इंटरव्यू जो है इन स्टूडेंट्स के, वो सुनते रहो. और उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीएससी वालों के सुनो, स्टेट सर्विस वालों के भी इंटरव्यू सुनो.
बहुत सारा ऐसा एक हाथ कैंडिडेट विल बी देयर ही कुडंट क्लियर यूपीएससी बट ही यूज दैट नॉलेज टू क्रैक द अदर एग्जाम. तो हाउ यू कैन ऑल्सो डू दैट एज अ बैकअप ऑप्शन, तो वो भी यू शुड अंडरस्टैंड नो. सो एटलीस्ट आपको ये ब्रॉड अवेयरनेस होना चाहिए. व्हेन यू आर एंटरिंग यूपीएससी यू वोंट बी एंटरिंग ऑन अ ब्लैंक स्लेट. सारे टॉपर्स ने क्या स्ट्रेटेजी यूज की थी, एवरीथिंग यू शुड नो. अब इतने सारे टॉपर्स के इंटरव्यू सुन के यू विल बी वेरी कंफ्यूज कि एक टॉपर ये स्ट्रेटेजी बता रहा है, दूसरा कोई बता रहा है. सो हमेशा याद रखना, हर किसी की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, हर किसी के अपना खुद का स्ट्रेंथ वीकनेसेस होते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड देन डिसाइड विच टॉपर स्ट्रेटेजी सूट्स यू. या इन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजी यूज की थी बट आई नीड्स टोटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी. लेकिन आपको ये पता तो होनी चाहिए हाउ दे प्रिपेयर देमसेल्फ, हाउ दे स्ट्रेटेजाइज देमसेल्फ, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी, फिर उन्होंने खुद को कैसे अपडेट किया एंड हाउ दे मैनेज टू क्रैक द एग्जाम. सो आपको उनसे जस्ट यू हैव टू नो हाउ टू फाइट द बैटल ऑन स्पॉट. आपको अपना बैटल खुद करना है एंड दैट्स व्हाई ओके ये टॉपर्स के इंटरव्यू इतने सुनो कि आई विल से कि कम से कम ऐसे टारगेट रखो कि मैं 100 टॉपर्स के इंटरव्यू सुनूंगा अभी से. जब मे बी 4 साल बाद आप एग्जाम दे रहे हो, अब यू आर इन फर्स्ट ईयर ऑफ योर प्रिपरेशन, तो फर्स्ट से थर्ड ईयर तक मैं कम से कम 100 इंटरव्यू सुनूंगा. आई विल कीप लिसनिंग. लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये इसका इंपॉर्टेंस आपको आज नहीं समझ में आएगा, बट जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जाओगे देन यू विल रियलाइज कि ये लोग क्या बता रहे हो, इनके टिप्स कितने आपको काम आएंगे बाद में. सो जस्ट ट्रस्ट मी ब्लाइंडली और इनके इंटरव्यू सुनते जाओ. बहुत प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज by doing these two things. So most important thing that I have told you, सबसे ज्यादा जिन पे आपको फोकस करना है, that reading this novels and following YouTube content और YouTube पे then content of very good expert people and start listening. और this is not guys एक या दो वीडियो की बात, आप हर दिन एक वीडियो सुन रहे हो. ओके हर डेली भी रूटीन में ना हो, लेकिन हफ्ते में ऐसे कोई इलॉन मस्क का एक इंटरव्यू सुन लिया, कोई युवल नोआ हरारी का एक आध इंटरव्यू सुन लिया, सुंदर पिचाई का एक आध इंटरव्यू सुन लिया, रतन टाटा का सुन लिया, कोई इजराइल यूक्रेन पे कोई डिबेट चल रही थी वो डिबेट सुन ली, एंड दिस इज नाउ योर लाइफ स्टाइल. आप 1-2 साल व्हेन यू आर लिसनिंग टू दोज डिबेट्स, जितनी आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी यू विल बी इन वेरी गुड पोजिशन वाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. तो ये बहुत लॉन्ग टर्म में क्यूमुलेटिव इंपैक्ट और इफेक्ट देगा आपको. और सेम वे ये जो टॉपर्स के इंटरव्यूज आप सुन रहे हो, दैट दीज इंटरव्यूज नाउ टोटली फोकस्ड ऑन योर नीड, एग्जामिनेशन नीड. तो ये दो चीजें, और नॉट ओनली इंटरव्यूज, आप सेमिनार्स भी अटेंड कर सकते हो ऑफलाइन वाले, वो भी सेमिनार्स, या आपके रिलेटिव्स में या जान पहचान में कोई बंदे जो ऑलरेडी यूपीएससी को प्रिपेयर करा है, 1-2 बार इंटरव्यू भी दे चुका है, या वो हैज गिवन दिस एग्जाम क्रैक्ड एग्जाम, उनसे टाइम लेके, उनके अपॉइंटमेंट लेके गो एंड हैव डिस्कशन विद देम, इंटरेक्शंस विद देम. या जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लाइक टीचर्स भी हो जो पढ़ा रहे आपके जान पहचान में, जस्ट गो मीट देम, टेक देयर अपॉइंटमेंट, हैव इंटरेक्शन विद देम. ओके लेकिन ये टिप्स लेते रहो. बाय द एंड आपको लड़ाई अपनी खुद करनी है, बट दिस टिप्स विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग वे. सो फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट. उसके बाद स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर. आई टोल्ड यू, बट इट्स ट्रस्ट मी, इट इज साइकोलॉजिकली वेरी डिफिकल्ट. और इनिशियली 1-2 साल जब आप यू स्टार्ट डूइंग एक्चुअल प्रिपरेशन कोचिंग, तो पहले 1-2 साल तो स्टूडेंट में बहुत मोटिवेशन होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का, बहुत एनर्जी होती है. बाद में दे रियलाइज आई कांट स्पेंड 2-3 आवर्स अ डे रीडिंग न्यूज़पेपर, इट्स कॉस्टिंग मी ट्रिमेंडसली. मोस्ट ऑफ देम गाइज स्टार्ट गिव अप रीडिंग न्यूज़पेपर. बहुत ज़्यादा वो यूपीएससी के कोचिंग इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर मैगजीन पे ही फोकस करते हैं. एंड सो दैट्स गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में लोग बैठे हैं, ओके 8-10 लोग बैठ के वो नॉवेल या सारे 8-10 न्यूज़पेपर पढ़ के वो मैगजीन बना रहे हैं. सो ऑब्वियसली इट इज वेरी रिफाइंड कंटेंट फॉर यू. इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू आपके लिए न्यूज़पेपर नहीं लिखता, वो पूरी इंडिया के लिए लिखता है. सो से यूपीएससी फिल्टर्ड कंटेंट, अगर आपको इफिशिएंटली फिल्टर किया हुआ कंटेंट मिल रहा है, देन यू शुड बी यूजिंग दैट मोर. नो पॉइंट री इन्वेंटिंग द व्हील. सो लार्जली यू फोकस ऑन दैट कंटेंट. लेकिन अभी से यू कैन स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर इफ इट इज हेल्प्स यू अपडेट एंड स्टे अपडेटेड. सो फोकस ऑन रीडिंग आर्टिकल्स और अंडरस्टैंडिंग इश्यूज, okay, to develop the analysis. Okay, so focus more on reading these articles, understanding the issues. तो basic awareness तो न्यूज़पेपर से आए या यूट्यूब डिबेट से आए चल जाएगा. न्यूज़पेपर बहुत ओपन एंडेड होगा, फिर उसमें कोई सेंसेशनल न्यूज़ होती है, लार्जली वी एंड अप रीडिंग दैट. कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हुआ, कहीं पे कुछ ऐसे क्राइम रिलेटेड कोई न्यूज़ आ गई, वी एंड अप रीडिंग दोज न्यूज़ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग रियल यूपीएससी के लिए जो काम किया है. यूट्यूब डिबेट्स वगैरह, टेड टॉक्स, टेडेड टॉक्स, वो ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे टू स्टे फोकस्ड एंड डेवलप क्वालिटी कंटेंट, एक एनरिचिंग कंटेंट. तो इसलिए यूट्यूब को, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करो, फिल्टर्ड कंटेंट
you will be able to get. फिर उसमें do the writing daily. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सी यू हैव बैड इंग्लिश तो यू नीड टू इंप्रूव दैट. वो एस्पेक्ट आई विल डिस्कस सेपरेटली. बट जस्ट बिकॉज यू हैव गुड इंग्लिश डजंट मीन यू विल हैव वेरी गुड राइटिंग स्टाइल. बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग के होते हैं, MBA ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंस के, एंड इंजीनियरिंग वगैरह में दे नेवर हैड टू फोकस ऑन राइटिंग और प्रेजेंटिंग डेटा 1200 वर्ड्स में, राइट सो डिस्क्रिप्टिवली. या जो भी पेपर भी लिखने होते हैं दे आर मोर यू यूज फॉर्मूलाज एंड आंसर राइटिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट या पॉइंटर्स फॉर्मेट में. यूपीएससी का जो एनालिसिस राइटिंग है, ओके, यू नीड टू हैव वेरी गुड इंग्लिश लैंग्वेज कि जो वर्ड्स यूज कर रहे हो, इडियम्स यूज कर रहे हो, फ्रेजेस यूज कर रहे हो. यू नीड टू राइट लाइक अ नॉवेलिस्ट, like some thinker, philosopher, administrator. And while writing that, okay, you need to analyze and show how broader manner you can analyze the topic. और उसके लिए both you need very good vocab and you need very good fluency. Okay, sentence construction ability से presentation ability etc. And उसके लिए guys ये भी 1-2 दिन में नहीं आएगी. Even if you are good engineering student who could speak very fluently English, but when you take a pen and start writing, okay, even on random topic, just take it as exercise. आपको लगता है मेरा इंग्लिश अच्छा है एंड आई कैन राइट वेरी गुड और आई स्पीक वेरी गुड, या मैं इंग्लिश की किताबें पढ़ता हूँ इंजीनियरिंग वगैरह की, सो दैट वोंट बी बिग डील. सो जस्ट डू वन थिंग, टेक दिस शीट और 500 वर्ड में आई विल राइट एन एसे ऑन अ टॉपिक ऑफ गो माता. वाई काउ शुड बी कॉल्ड मदर. बहुत ईजी टॉपिक है. गो माता क्यों, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ काउस, काउ फॉर ह्यूमंस. जस्ट एक इतना सिंपल टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं. 500 वर्ड में लिख के देखो. 150 वर्ड के आगे यू वोंट बी एबल टू राइट. तो फिर 1000 वर्ड में ऐसे लिखना है कोई किसी सिंपल टॉपिक पे, वेयर टू जनरेट वर्ड्स फ्रॉम इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग. और वर्ड भी जनरेट होते हैं, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग, रोमांटिसाइज द टॉपिक, मेक द टॉपिक इंट्रीग्यूइंग, और ये सब करना है देन डेफिनेटली वो चीज एक दिन में नहीं आएगी. एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू डेवलप राइटिंग हैबिट डेली. यार और अभी डेली ना कर पाओ, लेकिन अगर आप 5-6 महीने में या 1 आध साल में एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, देन स्टार्ट राइटिंग डेली. 1 आध घंटा मस्ट है वो. बट अभी 2-3-4 साल है आपके पास, तो हफ्ते में बैठ के किसी भी टॉपिक पे जो आपको लगे, यू नीड नॉट बी यूपीएससी टॉपिक, इंटरेस्टिंग, आप खुद कोई टॉपिक चूज कर लो कि रील मेकिंग पे मुझे ऐसे लिखना है कि रील मेकिंग या इंस्टाग्राम यूज बेनिफिशियल है या बर्बाद करने वाला है. कोई बहुत ईजी टॉपिक, या इंस्टाग्राम रील के फायदे या नुकसान, सिंपल ऐसे टॉपिक, कोई भी ऐसे इजी टॉपिक भी हो ले लो. बट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग योर थॉट्स ऑन अ पेपर, राइटिंग योर थॉट्स ऑन द पेपर. फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा हाउ डिफिकल्ट दिस टास्क इज टू रिकॉल एंड रिप्रोड्यूस द कंटेंट इन अ राइटिंग फॉर्मेट, प्रेजेंट इट प्रॉपरली. एंड दैट्स व्हाई गाइज राइटिंग नॉवेल्स इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. लैंग्वेज तो हर किसी के पास होती है, ओके, एवरीवन इज गुड इन स्पीकिंग, बट राइटिंग इज वेरी चैलेंजिंग. और यूपीएससी में 1750 मार्क इज ओनली राइटिंग मेंस एग्जाम. और उसके बाद 2 पेपर भी है, 2 लैंग्वेज पेपर जिसके मार्क्स काउंट नहीं होते, बट दे आर ऑल्सो देयर. बट एक्सक्लूडिंग दोस 2 पेपर्स, 1750 मार्क का राइटिंग एग्जाम. एंड इसी में बहुत सारे स्टूडेंट गाइज इवन विथ वेरी वीक नॉलेज बेस by with their good language skills score very very good marks. मैं अलग से सेपरेट लेक्चर आई विल रिकॉर्ड जिसमें आई विल शो यू द मार्क शीट्स ऑफ दोज सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड वेयर यू विल रियलाइज एसे एंड इथिक्स पेपर का इंपॉर्टेंस. बिकॉज GS 1, 2, 3 में कितनी भी पढ़ाई करो, हार्डली एनी टॉपर विल गो अबव 100 मार्क्स. बट एसे इथिक्स में 140-150 इज पॉसिबल, एंड दे आर एसे इथिक्स एंड योर ऑप्शनल बोथ आर गेम चेंजर्स. और ऑल दिस 4 पेपर्स, एसे इथिक्स एंड 2 ऑप्शनल्स, require you to score 140-150, and if it is manageable you can score it. All toppers score it and they change your entire game. और ये चारों पेपर में if you need good marks, you need to have very good language skills and very good writing skills, no doubt. And वो अभी से focus करो. You will be with your coaching and your hard work, you will be able to crack prelim, which is more objective in nature. Most students stuck up in the main stage. और इसके लिए सो डू राइटिंग डेली, फोकस ऑन इंग्लिश राइटिंग स्किल, ग्रामेटिकल इश्यूज. और अगर आपको ग्रामेटिकल इश्यूज है, लाइक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में ही प्रॉब्लम है, बहुत सारे या स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, आर्टिकल का यूज, ए एंड दी, इस ऐसे भी इश्यू होते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम ZP स्कूल एक्सेट्रा, या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में व्हेन आई रीड
इनके जो पेपर जो स्टूडेंट्स ऐसे लिख के आते हैं मुझसे इवैल्यूएशन करने के लिए, या मुझे ऑनलाइन जो ऐसे भेजते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ या ग्रामेटिकल एरर्स, एंड दैट विल गिव यू वेरी बैड वाइब। क्योंकि और इस चलो इंजीनियरिंग के एग्जाम है, बाकी कोई आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम है, वो प्रोफेसर इग्नोर तो कर देगा वो सारे बेसिक एरर्स, बट यहाँ व्हेन यूपीएससी में यू आर कंपीटिंग विथ योर फ्रेंड्स, ओके, इवन इफ यू गिव 1 or 2 mark लेस, इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू हर क्वेश्चन के लिए भी, एंड दैट्स व्हाई एंड यू आर कंपीटिंग विद द बेस्ट टैलेंट अक्रॉस इंडिया जो है उनके साथ, मोस्ट ऑफ देम वोंट बी हैविंग दिस प्रॉब्लम ऑफ बैड इंग्लिश और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एरर्स, ऐसे उनके इश्यूज ही नहीं होंगे। दोज आर स्टूडेंट हु हैव लर्न फ्रॉम इंटरनेशनल स्कूल्स, नवोदया और केंद्रीय विद्यालय एटसेट्रा, वेयर दे हैड गुड इंग्लिश प्रो फैकल्टी एटसेट्रा, और उनसे compete करना है, देन देयर वोंट बी ओके एनी दिस एज फॉर यू कि आप जेडपी के बैकग्राउंड से थे या किसी रूरल एरिया से थे तो आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा मार्क दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, दैट एग्जामिनर वोंट बी नोइंग what was your socio-economic background. So automatically then you need to focus on this skill, take this very seriously. और उसमें भी एक बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी दैट आई विल टेल यू अभी से, उसके लिए मैं आई विल रिकॉर्ड सेपरेट लेक्चर कि ट्राई, आई टोल्ड यू लेवरेज द टेक्नोलॉजी। तो अभी अगर आपको लगता है मेरा इंग्लिश खराब है, तो अभी 2-3 साल से राइट ऐसे, आई टोल्ड यू डू राइटिंग डेली, देन डोंट डू इट ऑन अ पेपर, डू इट इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, उसका माइक्रोसॉफ्ट का जो AI है विल स्टार्ट वर्किंग, विल कीप यू कंटिन्यूसली स्टार्ट पॉइंटिंग द एरर्स फॉर यू, कि आपने जो सेंटेंस लिखा उसमें क्या कंस्ट्रक्शन की एरर है, और खुद वो एरर करेक्ट करते जाओ, और वैसे कंटिन्यूसली जो प्रैक्टिस करोगे, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ दैट बेसिक मिस्टेक दैट यू आर डूइंग, यू विल बी लर्निंग अबाउट देम एंड यू विल बी एबल टू इंप्रूव देम। सो ट्राई राइटिंग इंस्टेड ऑफ ऑन पेपर, यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एंड लेट द माइक्रोसॉफ्ट का AI डू द टास्क ऑफ करेक्टिंग योर इंग्लिश, और फिर 2-3 साल आप ऐसे राइटिंग करोगे, डेफिनेटली इट विल हेल्प ट्रिमेंडसली। और उसमें भी जो राइटिंग, अगर ये बेसिक इशू आपका सॉल्व है या आपने कर दिया, तो उसके बाद ट्राई राइटिंग फिलोसॉफिकल कंटेंट पे, अभी से फिलोसॉफी एस्पेक्ट्स पे लिखो। ओके, कि और बहुत इजी टॉपिक्स, अभी यू कैन स्टार्ट बाय टेकिंग वेरी इजी टॉपिक कि व्हाट इज द सोशल मीडिया, हाउ सोशल मीडिया इज चेंजिंग माई लाइफ, गुड वे बैड वे, ओके, बट फिलोसॉफिकल थोड़ा एज से लिखो। या बुद्धा के 4 महावाक्य जो 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, तो ये बुद्धिज्म की जो कोर फिलोसॉफी है, बुद्धिज्म पढ़ के कि आपको क्या समझ में आया, व्हाट वाज द कोर मैसेज ऑफ बुद्धा, वो लिखना चालू करो। तो यू डोंट हैव टू टेक वेरी टफ टॉपिक दैट यूपीएससी गिव्स, दैट यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस, इस तरह के, वो बाद में यू कैन ट्राई दैट, बट अभी इजी टॉपिक। जैनिज्म फिलोसॉफी को गूगल करो, रीड अबाउट बेसिक अबाउट जैनिज्म फिलोसॉफी 1-2 घंटे, एंड दे विल थिंक कि व्हाट वाज द कोर ऑफ अ जैनिज्म फिलोसॉफी, ओके, क्रक्स ऑफ जैनिज्म फिलोसॉफी इन 200 वर्ड्स। चूज सच ए सिंपल टॉपिक, स्टार्ट राइटिंग 100-200 वर्ड्स में ये बेसिक्स इजी टॉपिक्स लेके इनके बारे में लिखो। शिवाजी महाराज, टेक अ टॉपिक कि व्हाई शिवाजी महाराज वाज सच अ ग्रेट किंग, वेयर डू अ रिसर्च लॉट अबाउट हिम, और उनके फिर क्रक्स आइडिया, क्यों उनको भगवान जैसा पूजा जाता है। अकेला राजा है, 3-4 हज़ार साल की हिस्ट्री में पूरी दुनिया की हो कि किसी राजा को भगवान जैसे पूजा गया। सो व्हाई दिस शिवाजी महाराज किंग गॉट वर्शिप्ड एज अ गॉड, इसका रीजन क्या है, जस्ट गूगल इट, उनके बारे में बहुत पढ़ो और फिर सोचो क्या उन्होंने किया, कैसे ही वॉज डिफरेंट कंपेयर टू प्रीवियस किंग्स। तो ऐसे कोई भी एक टॉपिक उठा के लिखो, और जैसे जैसे फिर आपके नॉलेज ये रिफ्लेक्शन बढ़ने लगे, यू आर एबल टू राइट बेटर एंड बेटर क्वालिटी, फिर थोड़ा हायर लेवल टॉपिक्स पे जाओ, डूइंग राइटिंग ऑन दोज हायर लेवल टॉपिक्स की अगर गांधी नहीं होते, हाउ वुड हैव बीन डिफरेंट द इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और इसके लिए आपको थोड़ा टेक्निकल एज लगेगा, यू नीड टू रीड अबाउट गांधी, हिस्ट्री एटसेट्रा। तो वो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट व्हेन यू विल ज्वाइन, व्हेन योर डेटा विल स्टार्ट गेटिंग एनरिच्ड, यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट लेटर ऑन। देन फोकस ऑन कंटेंट देन सेंसेशनल मसाला कंटेंट। इसके लिए तो मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि यूट्यूब पे इतना मसाला कंटेंट इंस्टाग्राम पे चल रहा है। अभी कल परसों ही मुझे यूट्यूब पे 2 बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके वीडियोस यूपीएससी में काफ़ी सर्कुलेट होते हैं, 2 फैकल्टीज, उनके 2 वीडियोस आए। एक में वो बता रहा है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे, अब हाउ डज हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे क्या होता है, वो यूपीएससी को मैटर करेगा। व्हाई यूपीएससी विल बी आस्किंग कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते रहते हैं और होते नहीं रहते, फालतू के कुछ भी ज्ञान बांटा जा रहा है यूपीएससी के नाम पे एटसेट्रा। ओके, या एक टीचर, वो एनिमल मूवी पे इनको गुस्सा क्यों आया,
और हाउ डज एनिमल मूवी पे गुस्सा आ गया दैट इज गोइंग टू डील और इज रिलीवेंट विथ योर टॉपिक, या किसी मूवी के डायलॉग पे वो ज्ञान बांट रहा है. सो बहुत ऐसा होपलेस कंटेंट है, सेंसेशनल कंटेंट है, ओके, बट विच इज ऑफ नो यूज फॉर यूपीएससी. ओके, फोकस ऑन रियल कंटेंट गाइज, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू सॉल्व द आंसर. तो कोई भी चीज पढ़ रहे हो, इतना ही याद जानो कि इसकी कुछ यूटिलिटी है मेरे एग्जामिनेशन के आंसर राइटिंग में. इफ इट इज नॉट, देन stop watching that content, watch the real content that is going to use or help you in preparation. तो इसके लिए तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन सेंसेशनलिज्म. तो ये सब करते वक्त आपको ये चीजें बेसिक याद रखनी है कि 2-3 साल इंटरटेनिंग रील्स मत देखो यूपीएससी के लिए. हाँ, एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनिंग रील्स देखो, बहुत सारे अच्छे इंस्टाग्राम रीलर्स हैं, उनके वीडियोस देखो सिर्फ फॉर फन, टाइम पास. जैसे 3 घंटे मूवी देखते हो, 3 घंटे रील्स देख लो, नॉट अ बिग डील. लेकिन अगर यूपीएससी के लिए देखने हैं, देन वॉच द रियल कंटेंट. एंटरटेनमेंट एंड प्रिपरेशन को मिक्स मत करो, दैट विल कॉस्ट यू वेरी बैडली. देन फाइंड फ्रेंड्स विथ सिमिलर इंटरेस्ट फॉर अ डिबेट एंड डिस्कशन. See guys, this topic also I will be recording separate video, how to do group study, significance of group study, and trust me it is very very useful. Okay, I have seen even मेरी wife और उसका एक friend, he was also from history optional, both दोनों का history optional था. और जिस तरह से एवरी डे वो यूज टू डिस्कस कि ये टॉपिक आज करंट अफेयर में ये पढ़ेंगे, और रात को दे यूज टू आस्क क्वेश्चन टू ईच अदर, या कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व की, तुम्हारे कौन से क्वेश्चन गलत हुए, मेरे क्यों करेक्ट हुआ, वो मैंने क्या रीजनिंग लगाया था, तुमने ये रीजनिंग कैसे गलत किया. दे यूज टू डिस्कस इवन फिक्स कि आज हम ये टेस्ट सॉल्व करेंगे, फिर दोनों में के डिस्कशन क्या क्या गलत हुआ सही हुआ, करंट अफेयर के इतने टॉपिक पढ़ेंगे उनका डिस्कशन डेली रात को 1-8 घंटे दे यूज टू डिस्कस दैट. Okay, and tremendous guys, both of them cracked the exam, both of them are in a service. तो ऐसा एक good friend who is really focused and have same interest area, choose such a friend and abhi se you prepare with him, that will tremendously help you. So find friends with a similar interest for debate and discussions, and that will tremendously help you कि debate, discussion, analysis या दोनों के वजह से जो मोटिवेशन आता है. आप बोलोगे हाँ टेस्ट सीरीज का पेपर कर रहे हैं, एक आध दिन यू विल थिंक यार आज ये पेपर आई कांट डू, रहने देते कल करते हैं, आज आधा ही करते. बट यू एंड योर फ्रेंड बोथ आर डूइंग इट, और टाइम है कि रात को 8 बजे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पेपर, दिन में कभी भी वो सॉल्व कर लो पूरा पेपर. वो प्रेशर भी होता है एक इनडायरेक्टली, और उससे कंसिस्टेंसी बढ़ती है, कमिटमेंट इट विल इंक्रीज, एंड दैट्स व्हाई फाइंड वन गुड फ्रेंड विद सिमिलर इंटरेस्ट. ओके, दैट विल हेल्प यू डिबेट डिस्कशन. बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन कोर्सेस भी होते हैं, तो वहां पे भी आपको कोई ऐसा एक अच्छा फ्रेंड मिल जाए, बट प्रिपेयर. ओके, यार 2-3 का ग्रुप हो दैट्स इनफ. उससे भी ज्यादा बड़ा ग्रुप 4-5-10 स्टूडेंट का, दैट वोंट बी एबल टू बी इफिशिएंट. ओके, इफ यू हैव लार्जर ग्रुप, देन ओवरव्यू द सिलेबस. ओके, नोट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग द स्टैटिक पार्ट. फिर अब यूपीएससी रिलेटेड, चलो ये तो बेसिक चीजें करनी है, अबाउट जनरल अवेयरनेस, बेसिक अवेयरनेस, एंड टू डेवलप योर पर्सनैलिटी स्किल सेट. बट नाउ regarding UPSC specific content, okay, first thing you need to do is overview the syllabus. Okay, सारा syllabus अच्छे से overview करो, and by overviewing the syllabus, okay, start preparing basic static part कि at least UPSC का syllabus क्या है. एक एक topic carefully पढ़ो. Urbanization is there, okay, agriculture is there, ecology environment is there, social issue, women and gender development based issues. तो इस तरह से you should be reading all this, एटलीस्ट सिलेबस की पूरी इंडेक्स पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ो. देन यू विल रियलाइज, अब आपको इतना तो समझ में आया, अर्बनाइजेशन इज द टॉपिक. नाउ व्हेन यू आर 2-3 years preparing, you will start automatically noticing what are the problems of my urbanization in my city. Okay, in my city metro has been created, then is it helping to reduce the traffic congestion? Okay, then police department has removed all the police personnel, especially traffic police के number have been reduced. Physical जो policemen सड़क पे खड़े होते थे, they are not there now. Largely CCTV cameras are there. Are people following the traffic properly? फिर ये जो सारा मेरे सिटी का वेस्ट मटेरियल है कहाँ जा रहा है? ओके, ये लिक्विड जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मैंने कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा था. इज इट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन माय सिटी? ओके, व्हिच एजेंसी इज मैनेजिंग, हाउ प्राइवेट सेक्टर इज हेल्पिंग इन माय म्यूनिसिपल वेस्ट के मैनेजमेंट में, हाउ माय प्राइवेट सेक्टर इज प्लेइंग रोल. तो ये बेसिक अवेयरनेस, ये जो टॉपिक पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा, दीज आर द टॉपिक्स दैट यूपीएससी इंटरेस्टेड इन एंड आई शुड बी अवेयर ऑफ दिस टॉपिक्स. ओके, फिर और थोड़े हायर लेवल पे कि चलो मेट्रो तो से ट्रैफिक कंजेशन तो कम नहीं हुआ, बट फिर और क्या क्या हो सकता है, या कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज आर देयर इन यूरोप, अमेरिका दैट कैन बी यूज्ड इन इंडिया
टू मैनेज दिस इश्यू ऑफ ट्रैफिक कंजेशन से लेके ऑल दिस गार्बेज डिस्पोजल एवरीथिंग. सो ऐसे बेसिक अवेयरनेस पे कौन सी चीजें आई शुड लिसन अबाउट ऑन यूट्यूब, आई शुड रीड इन न्यूज़पेपर, ये जो चीज है वो आपको समझ में आएगी. सो डू ओवरव्यू द सिलेबस, ओके, पॉइंट बाय पॉइंट रीड द सिलेबस प्रॉपरली एंड नोट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग द स्टैटिक पार्ट. और उसमें भी प्रिपरेशन करना है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्टैटिक पार्ट. और स्टैटिक पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्योंकि इट डजंट चेंज. सो डायनेमिकली largely this history is not going to change, geography is not going to change. हाँ, कुछ रिसर्च ऐड होंगे, अपडेट होंगे, that will be there, but large part 70-80% core part is going to be static. So you start preparing on these two topics. लेकिन उससे भी ज़्यादा you should start preparing on two major topic, essay and ethics. Because history, geography, GS पेपर के पार्ट का एक पार्ट है, एक पेपर का एक पार्ट है. एसे इज द पेपर, इथिक्स इज द पेपर. और कितना भी पढ़ो जीएस में, 100 क्रॉसिंग इज वेरी हार्ड. इवन दोज हु आर टॉप 100 रैंकर, उनको भी 110, 120 के ऊपर रेयरली मार्क आते हैं. बट एसे इथिक्स एवरीवन स्कोर्स 140, 150, एंड दैट्स व्हाई. और वो भी पार्ट लार्जली स्टैटिक है. बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारी चीजें चेंज नहीं होगी. एंड लार्जली दिस पार्ट रिक्वायर्स रिफ्लेक्शन, एनालिसिस ऑफ द टॉपिक एंड गुड राइटिंग स्किल एटसेट्रा. सो इनका कंटेंट ही यू हैव नाउ रेडी. 1-2 साल में बेसिक तो पता है. Then you will be able to do a lot of writing practice on this part, and once this part is ready, then you will have to, when you jump in actual coaching or start preparing actually for UPSC, you can start focusing on other topics. तो जो static part है, like CSAT, puzzle solving, reasoning ability, आज से habit डालो, करो 2-3 साल उस पर workout. स्टार्ट सॉल्विंग पजल. कोई पजल की टाइम पास के लिए कोई मार्केट से किताब खरीद के लेके आओ पजल्स की. स्टार्ट सॉल्विंग फॉर टाइम पास दिस एंटरटेनिंग पजल्स. ओके, तो ये जो है प्रैक्टिस अभी से करो सीसैट वगैरह, बिकॉज सीसैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. सेम ऐसे एथिक्स नॉट गोइंग टू चेंज. हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल इश्यूज, ये जो पार्ट है वो बाद में रखो. इसलिए न्यूज़पेपर में यू विल कम अक्रॉस लॉट ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज, इवन सोशल इश्यूज, क्राइम रिलेटेड, अर्बन मैनेजमेंट एटसेट्रा. बट बाय इन 3-4 years these issues might change. So वो जो टॉपिक्स है बाद में रखो. अभी फोकस मोर ऑन दिस स्टैटिक पार्ट और दो स्किल सेट दैट यू वोंट बी एबल टू डेवलप लेटर ऑन, दैट विल टेक टाइम. सो यू शुड फोकस मोर ऑन दोज. देन ओवरव्यू द क्वेश्चन पेपर्स. ये भी एक काम करो. ओके, एटलीस्ट पिछले 3-4 साल के, ओके, कम से कम 3 साल. ओके, डू दिस. गो ऑनलाइन और यूपीएससी के इसमें, ओके, तो सीधे डालो कि यूपीएससी मेंस एग्जाम 2023, यूपीएससी मेंस एग्जाम 2022, यूपीएससी मेंस एग्जाम 2021, एसए पेपर, इथिक्स पेपर, जीएस 1, 2, 3, 4 पेपर. कुछ भी समझ में ना आए, ऑप्शनल विल बी बिट टेक्निकल, बट एटलीस्ट जीएस एंड एसए पेपर जस्ट ऑब्जर्व क्या पूछा है. लैंग्वेज के पेपर, मराठी, इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज देने वाले हो, ओके, डाउनलोड दोज लैंग्वेज के पेपर्स. जस्ट रीड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे हैव बीन आस्किंग और व्हाट काइंड ऑफ एसेज दे हैव बीन आस्किंग. इथिक्स में किस तरह की केस स्टडी पूछी थी बेसिक, या क्या कोड दिया था और दे हैव बीन आस्क्ड यू टू राइट आंसर. जस्ट रीड द पेपर्स. एक दिन बैठ के सिर्फ इतना ही काम करो, ओके, या 2-3 दिन पिछले 3 साल के सारे पेपर जो है एसए, जीएस 1, 2, 3, 4 एंड जो लैंग्वेज के पेपर है, इंग्लिश पेपर, मराठी वगैरह, वो ऑप्शनल नहीं किया तो भी चलेगा. इट्स वेरी टेक्निकल, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इफ यू डोंट नो द थिंकर, फिलोसोफर और कोर दैट टेक्निकल थ्योरी बिहाइंड इट. सो ऑप्शनल यू नीड नॉट डू. बट जीएस 1, 2, 3 के सारे पेपर्स डाउनलोड करके जस्ट रीड पिछले 3 साल के. जस्ट गेट अ सेंस व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, व्हाट दे आर डिमांडिंग फ्रॉम यू, व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन. प्राइम योरसेल्फ. इससे क्या होगा दैट व्हेन यू विल स्टार्ट एक्चुअल प्रिपरेशन, या कोई नॉवेल भी पढ़ रहे हो, ओके, यू विल गेट कि यार जिस तरह की यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आई शुड नोट इन दिस नॉवेल. या कोई यूट्यूब डिबेट देख रहे हो, व्हाट पॉइंट आई शुड नोट बिकॉज दिस ट्रेंड में क्वेश्चन इज आस्किंग. इफ यू डोंट नो द डिमांड, okay, then what's the point, okay, of reading or knowing about anything or listening about anything in the first place. So UPSC को क्या चाहिए, at least basic you know, then automatically when you are reading or looking at the world, you should be able to grasp or absorb that knowledge. Okay, basic चीजें. अब देखो, like for example, few days back I went to one hospital in Pune and see UPSC बहुत सारे general awareness के question पूछता है. And when I went into that hospital, वहाँ पे 4 कलर के गार्बेजेस थे. कि यहाँ पे जैसे हम घरों में होता है कि वेट गार्बेज एंड ड्राई गार्बेज, तो वहाँ पे ब्लू, रेड, अलग अलग कलर के थे.
एंड इन व्हाट दैट कलर के जो डस्टबिन है उसमें कौन सी मेडिकल वेस्ट डालनी है. नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट यूपीएससी माइट आस्क यू कि मेडिकल इंडस्ट्री में ओके जो अलग अलग कलर के कोड्स है उस हिसाब से कौन सी डिस्पोजल में कौन से कलर के इसमें कौन से इंजेक्शंस या एक्सपायर्ड मेडिसिन वगैरह कौन कौन से कंटेंट में क्या डाला जाता है. तो एक बेसिक चीज है वो वहां बैठे बैठे आई जस्ट नोटेड इट डाउन कि ओके दिस थिंग. अगर मैं कल कोई प्रीलियम का किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर बनाने जाता हूं आई विल आस्क क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट. तो इस तरह से एक अवेयरनेस यू विल बी एबल टू इंप्रूव. या आपका कोई अर्बनाइजेशन में आई टोल्ड यू बेसिक क्वेश्चन है कि गार्बेज जा कहाँ आ रहा है मेरे घर का, मेरे सिटी में कहाँ पे कोई लैंडफिल है, जहाँ पे कौन से एरिया में लैंडफिल बनाया है वेयर दिस गार्बेज इज गोइंग टू गेट डिस्पोज्ड. या मैं इंदौर से हूँ, वाई इंदौर गॉट 3 times द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड, क्या करा इंदौर ये क्लीनलीनेस कैंपेन के लिए एटसेट्रा. सो ये बेसिक अवेयरनेस की चीज है. सो वंस यू नो सिलेबस के क्या टॉपिक है, वंस यू नो काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट नोटिंग दोस थिंग्स एंड विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन दैट मैनर. और जब ये 2-3 साल के से इस एंगल से आप देखोगे दुनिया को, ओके 2-3 साल में जो प्रिपरेशन होगा, तो मैच्योरिटी दैट यू विल हैव व्हेन यू विल जंप इनटू द एग्जाम, यू विल बी फार अहेड ऑफ योर कंपीटिटर्स. देन ऑप्शनल पेपर. सब ऑप्शनल पे गाइस वर्किंग आउट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट्स वेरी टेक्निकल पार्ट. ओके तो ऑप्शनल पे थोड़ा रिसर्च आपने थोड़ा लेट भी किया देन तो भी चल जाएगा. लार्जली टुडे फोकस ऑन जनरल एस्पेक्ट्स, बट ऑप्शनल के बारे में एटलीस्ट एक बेसिक वर्कआउट यू शुड डू, दैट इज ट्राई चूजिंग वन. डू द बेसिक होमवर्क कि इतने सारे ऑप्शनल कौन कौन से ऑप्शनल हैं एंड विच ऑप्शनल आई शुड चूज दैट विल हेल्प मी इन प्रिपरेशन, या दैट आई लाइक, या मुझे इसकी कोचिंग अवेलेबल है, या बेसिक जो मैथ्स है वो करो उसके पीछे ऑप्शनल सिलेक्शन का. आई ऑलरेडी रिकॉर्डेड वन वीडियो हाउ टू चूज ऑप्शनल पे, सो वो एक वीडियो भी देख लेना, या मेरे बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियोस है वो सारे देख लेना, या फिलोसॉफी रिलेटेड इंटरेस्टिंग जो वीडियोस है वॉच ऑल दोज वीडियोस. एंड वंस यू हैव दिस ऑप्शनल के सारी वीडियोस में मैंने जो टिप्स बताई है एटलीस्ट वो सुन के ट्राई डूइंग सम बेसिक ग्राउंड वर्क होमवर्क कि विच ऑप्शनल आई शुड चूज. ओके वो पैरामीटर तो जान लो सारे एंड देन वर्कआउट. तो 2-3 साल में आप फाइनली उस डिसीजन पे पहुंचे, या एटलीस्ट यूपीएससी की 20-25 टॉपिक ऑप्शनल की लिस्ट में आपने 4-5 फिल्टर तो करके रखे दैट इनमें से तो कुछ मैं चूज करने वाला हूं. ओके दैट इज ऑल्सो बिग डील. सो एटलीस्ट इतना करो आगे के टाइम पीरियड में दैट 3 ऑप्शनल मैंने फाइनली फिल्टर आउट किए एंड इन 3 में से ही आई विल सिलेक्ट वन व्हेन आई विल स्टार्ट एक्चुअली प्रिपेयरिंग, और उसकी कोचिंग व्हेन आई विल ज्वाइन. सो उसके लिए ट्राई चूजिंग वन फर्स्ट. देन इंटरव्यू गाइडेंस गाइस, दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट स्टेज लाइक प्रीलिम्स मेंस के बाद इंटरव्यू गाइडेंस. एंड इंटरव्यू में गाइस द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू नीड इन इंटरव्यू, इट इज नॉट समथिंग यू कैन डेवलप अगेन 1-2-3-4 महीने में. एंड दैट्स वाई वहाँ पे you will do lot of mocks if you crack your means and preparing for interview. You will do lot of mocks, you will get lot of feedbacks. Most of the feedbacks you will work on, but still many personality related issues, okay, controlling them, managing them is very problematic. Some people are very anxious in front of interview panel, or they have very less stage daring. They will be very good at writing or solving CSAT, cracking prelims, writing good content in mains, but if many are not good at conversations. बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स व्हेन आई डिस्कस दे कम टू इवन आस्क बेसिक क्वेश्चन, दे डोंट इवन कंटिन्यूअसली मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट, टॉक कॉन्फिडेंटली, लुकिंग फेस टू फेस विद द अदर पर्सन. सो हाउ यू विल फेस द 5 member का इंटरव्यू पैनल, दैट टू ब्यूरोक्रेट विद 30-35 years एक्सपीरियंस. एंड दैट्स वाई ये जो पर्सनैलिटी टाइप है दैट यू नीड टू डेवलप एंड दैट यू नीड टू वर्क ऑन वेरी अर्ली. सो पार्टिसिपेट इन लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. स्कूल कॉलेजेस में जितने ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट हो, इवन इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डांस म्यूजिक ड्रामा, इफ यू डोंट लाइक इट, बैक स्टेज का काम करो, बट कीप डूइंग दैट. ओके डोंट जस्ट प्ले अ रोल ऑफ ऑडियंस, पार्टिसिपेट इन एवरीवन. उनको बोलो मुझे कुछ भी बैक स्टेज में काम है, आई विल डू इट फ्री. इवन मैनुअल लेबर का भी कोई आपके कॉलेज में स्कूल डांस ड्रामा है, एक्ट, ये कोई स्पोर्ट इवेंट है वो ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करो. इफ यू आर नॉट अ स्पोर्ट्समैन हु पार्टिसिपेट्स, इफ यू पार्टिसिपेट दैट्स वेल एंड गुड. Even if you're not, okay, work in those organizing committees, etc. But उससे जो एक personality pattern आता है, okay, ability to interact, how to face the challenges, how to quickly resolve the issues, how to come up with solutions, एक personality type that you have to develop. And this extracurricular activities will help you tremendously. आपके घर आजू बाजू कोई NGO है, कोई काम करता है, enroll for that NGO.
स्टार्ट वर्किंग फॉर दोज एनजीओज, या कोई इस तरह से कोई ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, कहीं पे कोई नोटिफिकेशन आया, गो एंड पार्टिसिपेट इन दैट ट्री प्लांटेशन ड्राइव, क्लीनलीनेस ड्राइव की बिल्डिंग, एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो होता है, क्योंकि व्हेन यू गो फॉर एक्चुअल यूपीएससी प्रिपरेशन यू वोंट बी एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स, एंड इफ यू आर डूइंग दिस थिंग्स देन इंस्टेड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग एंड फोकसिंग ऑन दैट, देन यू आर लूजिंग बिग वे. अभी कॉलेज में वी स्पेंड टाइम, वी हैव इनफ टाइम इन आवर हैंड, तो इस टाइम पीरियड में यू कैन यूज or participate in all such extracurricular activity, and it will help you develop good personality and good content for resume. Okay, तो आपकी resume के लिए it will help you develop good content. ये जो सारे participation certificates etc. बाकी स्टूडेंट ने क्या किया, 4 साल मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया और फिर 4 साल प्रिपेयर कराओ यूपीएससी के लिए. इन ग्रेजुएशन आई डिड ग्रेजुएशन एंड आई डिड ऑल दिस स्टफ, and in interview they just need some reason to give you extra mark compared to other competitor, then you need to provide them these extra reasons, okay, in the form of all this extracurricular activity that will help you build resume. And not only it doesn't have to help you build resume, but it should develop your personality. Utna bhi ho jaye, that is big deal. So you need to focus on these aspects. Then build strong foundation of academics. और हमेशा याद रखना guys, don't ignore the academics. Academics is equally important. If you have strong academics, that's your backup plan for UPSC. No one can guarantee UPSC make success. Even those who have cracked UPSC exam, now even top UPSC exam, first top 10 rankers भी है ना, go and ask them कि if you give exam next year, do you have a guarantee that you will again get the same rank और उसके आगे पीछे का कोई rank? And trust me, okay, none of them will say I will get the same rank. I have seen so many students who have got the rank already. Next time EOL लेके they appear for the next year की exam and they couldn't even clear the prelims, most of them. Okay, so there is very this effort and success may you can't have establish this relation 100% level पे, lot of uncertainty do exist. Okay, and that's why, okay, good academics, don't ignore the academics. Developing good academics, don't take your academics lightly. Developing good academics, developing good score is it helps tremendously. If you are graduate from a good college, okay, reputed college, वही आपके इंटरव्यू में will give you very extra edge. Because you are sitting in front of interview panel, where are you from? IIT, IIM, okay, or some VJTI, like मुंबई का जो है, हर स्टेट में ऐसे कुछ अच्छे कॉलेजेस होते हैं, and bureaucrat with 30-35 year experience knows about all those better colleges, all these better options that are available, or better universities, and you are graduate from that, वो एक aura create हो जाता है, halo effect, oh he is IITian, okay, going to be a talented one. इंटरव्यू में थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन इधर उधर भी हो जाए, that will not damage your performance. So don't take academics lightly. UPSC preparation तो करना है, but in your free time, not at the cost of your academics. And so don't ignore the college studies. And secondly, so these are the basic things that you need to keep in mind. और उसके बाद guys, develop good life habits. UPSC exam, even if you prepare this exam और ये सारे tips you implement and you are fully ready and you now graduated from month of June, and then from उस महीने से you join the coaching class, आगे के 1 साल for coaching preparation, फिर you give first prelim, you cracked it prelim, cracked mains, crack interview in first attempt, and you manage to succeed the post. लेकिन उसके final result आने तक everyone has to give at least 2 years, and most of them, okay, first attempt में crack करो. Very rare examples are there. Many जो who say कि हम मैंने first exam attempt में crack कर दी. यू डोंट नो कि पहले ही उन्होंने ग्रेजुएशन में कॉलेज में फाउंडेशन कोर्स करके 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे होते हैं. नो वन टेल्स दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी. सिर्फ बताते हैं मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया. ओके, सो ऐसे बहुत सारे बच्चे भी इसकी वजह से मिसगाइड भी होते हैं, बट डजंट मैटर. लेकिन ये जो है कि आपको 2 साल तो मिनिमम प्रिपरेशन टाइम इज देयर, एंड अनफॉर्चुनेटली यू फेल इन एनी वन स्टेज तो और एक साल उससे जुड़ जाता है. सो मिनिमम 3 साल का प्रिपरेशन इज देयर, एंड 3-4 साल घर बैठ के नॉन स्टॉप 10-12 आवर्स प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए कोचिंग के अलावा. देन यू नीड एक्सट्रीम पेशेंस, एफर्ट, और ऐसे में देन यू हैविंग अ गुड हेल्थ, ओके, गुड दिस लाइफस्टाइल ट्रिमेंडसली हेल्प्स. एंड दैट्स व्हाई वो अभी से डेवलप करो एक रूटीन इन योर लाइफ. हर कोई चीज़ रूटीन पे करना, स्लीपिंग ऑन टाइम, वेकिंग अप ऑन टाइम, हैविंग गुड फिजिकल हेल्थ ऑल्सो ट्रिमेंडसली हेल्प्स गाइज. वर्कआउट आप 45 मिनट्स का डेली वर्कआउट भी करते हो, इट्स नॉट वेस्ट ऑफ योर स्टडी टाइम. रादर बाकी जो 8 घंटे पढ़ रहे हो ना, इट्स एज गुड एज आप 14-15 घंटे में जो पढ़ोगे उतनी इफिशियंसी वो बढ़ा देगा. द वे इफ यू आर फिजिकली फिट,
बट यू आर एक्सट्रीमली डॉर्मेंट एंड इनएक्टिव इनइफिशिएंट पर्सन, ओके, तो 8 घंटे की जो पढ़ाई कर रहे हो ना इज एज यूजलेस, ओके, एज आप 3-4 घंटे की भी करो उतने ही टाइम पीरियड के जैसे पढ़ रहे हो, बिकॉज योर बॉडी वर्क इन वेरी इनइफिशिएंट वे, कि आप पढ़ते पढ़ते भी यू आर फीलिंग स्लीपी, फीलिंग डॉर्मेंट, फीलिंग एग्जॉस्टेड। लेकिन यू आर फिजिकली फिट एंड वेरी एक्टिव पर्सन, वो 5-6 घंटे की पढ़ाई इज एज गुड एज आपका ब्रेन इतना एब्सॉर्ब कर पाएगा, इफिशिएंटली काम कर पाएगा कि वो 8-10 घंटे में जो दूसरा स्टूडेंट करे। एंड सो डेवलपिंग गुड लाइफ स्टाइल, गुड हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी लॉन्ग टर्म एग्जाम, ओके, 2 साल तो मिनिमम प्रिपरेशन है, एक अटेम्प्ट फेल तो 3 साल तो मिनिमम है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु गेट सिलेक्टेड 3-4 साल सबको टाइम लगता ही है ऑन एन एवरेज। एंड सो यू नीड टू, ओके, बी रेडी कि 3-4 साल के प्रिपरेशन में यू विल रिमेन फोकस्ड, परसिवरेंट, एंग्जाइटी आपको ना हो, यू रिमेन फिजिकली फिट एंड सेल थ्रू वेरी स्विफ्टली। और इसके लिए वो एक लाइफस्टाइल जो हैबिट है यू नीड टू इनकलकेट राइट नाउ, ओके, वर्क ऑन दैट। एंड सो टू कंक्लूड मोस्ट ऑफ दिस टिप्स, तो उसमें मेजर थिंग दैट आई टोल्ड यू, इंप्रूव इंग्लिश इफ नॉट गुड, ओके, क्योंकि 1750 मार्क का इंग्लिश यू वोंट बी एबल टू इंप्रूव इन बाय एनी अदर वे, उसको टाइम ही लगता है, ओके, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स डेवलप करना, फोकस ऑन दैट। राइटिंग स्किल इज द, आई हैव सीन बिगेस्ट ऑब्स्टेकल। आप सीसेट इंप्रूव करोगे प्रैक्टिस से, प्रीलियम क्रैक करोगे लॉट ऑफ रीडिंग एमसीक्यू प्रैक्टिस से एक्सेट्रा, बट मेंस में एसे, इथिक्स, राइटिंग, ऑप्शनल भी बहुत अच्छा कोचिंग पाओगे भी तो भी कोई गारंटी नहीं, बिकॉज अगर अच्छे कोचिंग से सारे स्टूडेंट फिर सिलेक्ट हो जाते बिकॉज यू गॉट गुड ऑप्शनल का कोचिंग, दैट्स नॉट द केस। बिकॉज यू आर गुड ऑप्शनल का कोचिंग एट द सेम टाइम, ओके, आपका राइटिंग स्किल, आपका अंडरस्टैंडिंग ये बहुत मैटर करता है। एंड दैट्स व्हाई, एंड लार्ज बिगेस्ट ऑब्स्टेकल ये मेंस की प्रिपरेशन, ओके, जो इंप्रूव करना टेक्स टाइम, राइटिंग स्किल। सो इस पर बहुत फोकस करो, डेली स्टार्ट राइटिंग समथिंग, जो आई हैव टोल्ड यू, इजी टॉपिक्स लो कोई भी, ओके, बुद्धिज्म फिलोसॉफी का क्रक्स, जैनिज्म फिलोसॉफी का क्रक्स, इजी अभी लिखा। इफ वंस इट इंप्रूव्स, थोड़ा और हायर लेवल डिफिकल्टी के टॉपिक लिखने चलो, कि बुद्धिज्म का क्रक्स तो लिखा 3 महीने पहले लिखा था, अब बुद्धिज्म के अगर ये क्रक्स है कि ये कोर फिलोसॉफी मैसेज बुद्धा ने दिया था, ये मैसेज अगर मैं जिंदगी में इंप्लीमेंट करता हूं तो क्या मेरी लाइफ बदलेगी। अब थोड़ा हायर लेवल पे आप एप्लीकेशन ओरिएंटेड लिख रहे हो, ओके, अब उससे भी आगे जाओगे, देन कंपेयरिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की फिलोसॉफी, कॉन्ट्राडिक्टिंग दैट, तो थोड़ा थर्ड हायर लेवल पे। तो ये ग्रेजुअली डेप्थ ऑफ राइटिंग वो बढ़ानी है आपको, बट बेसिकली इनिशियली स्टार्ट विथ इजी राइटिंग, बट ओवरऑल 1-2 साल भी प्रिपेयर कर रहे हो, इट विल इंप्रूव ट्रिमेंडसली this writing skill, which is the biggest hurdle, okay. And last point, most important point that I want to conclude with, that time you waste if is not adding to your resume, you are losing big way। हमेशा याद रखना, इस कॉलेजेस में बहुत सारे बच्चे फिर ये कॉलेज में लेक्चर्स बंक करेंगे, लेक्चर बंक करके आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर या कुछ टाइम पास कर रहे हो, या कोई भी आप कॉलेज के एकेडमिक्स के कॉस्ट पे कुछ भी और चीज करने जा रहे हो, ऑफिस से बाहर बैठ के या कॉलेज से बाहर बैठ के, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, देन यू आर लूजिंग बिग वे। यस, आई एम नॉट सेइंग कि कॉलेज के क्लासरूम में बैठ के बहुत ज्ञान आने भी वाला है, ओके, ना भी आए आपको लगता है इट्स लेक्चर इज टोटल वेस्ट, चलेगा, बट दैट वो जो लेक्चर आप बंक करके कहीं बाहर जा रहे हो ना, मेक श्योर इट एड्स टू योर रेज्यूमे, ओके। यस, एंटरटेनमेंट, टाइम पास इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो करना ही है, ओके, नो वन कैन वर्क फुल्ली 10-12 घंटे, लेकिन इफ यू आर डूइंग इट एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग लाइक एकेडमिक्स एक्सेट्रा, देन मेक श्योर यू डू इट प्रोडक्टिवली। मतलब अगर एक दिन कॉलेज बंक कर रहे हो, देन मेक श्योर कि वो कॉलेज बंक कर रहे हो क्योंकि यूपीएससी का कोई सेमिनार अटेंड करने जा रहे हो, ओके। या आपको लगता है ये लेक्चर टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं बंक करके कैंटीन में बैठूंगी, तो मेक श्योर वो 1 घंटे यूट्यूब पे कोई टॉपर का इंटरव्यू पढ़ रहे हो। सो टाइम यू वेस्ट इस, या ये इफ यू डू समथिंग एट द कॉस्ट ऑफ एकेडमिक्स, मेक श्योर इतना ही खुद को पूछो कि मैं ये जो टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ओके, इज इट गोइंग टू और हेडिंग मी और हेल्पिंग मी इन एनी वे टू इंप्रूव माई रेज्यूमे और नॉट। सो टाइम यू वेस्ट इफ नॉट एडिंग टू योर रेज्यूमे, यू आर लूजिंग बिग वे। एंड सो इतना याद रखो दैट एम आई बीइंग प्रोडक्टिव, या जो भी मैं अभी ये कर रहा हूं चीजें, ओके, आर दे गोइंग टू हेल्प मी इन लॉन्ग टर्म। सो बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर गेम खेलने की आदत होगी, कॉलेज में बहुत सारे खेलते हैं, मैं भी खेल रहा था, बहुत सारे खेलते होंगे। 1-आध घंटे के लिए टू रिलैक्स फाइन, लेकिन 5-5 घंटे खेल रहे हो, चलो खेलो, बट इज इट गोइंग टू हेल्प यू एनी वे टू बिल्ड योर रेज्यूमे एक्सेट्रा।
चलिए इंस्टाग्राम पे 1 आध घंटे रील देख लिए, आधा घंटे देख लिया फॉर अ रिलैक्सेशन, टाइम पास, फॉर फन एंजॉयमेंट, गुड। 4 घंटे देख रहे हो, सो देखो, नॉट अ बिग डील, बट देन आर यू प्लानिंग टू मेक अ इंस्टाग्राम रील एज योर करियर? उससे कोई मुझे इनकम आने वाला है, आई एम गोइंग टू मेक इट करियर एंड जनरेट वेल्थ, इफ सो देन इन्वेस्ट so much energy on Instagram. Otherwise it is not adding to your resume, then keep it limited, okay, to that enjoyment, fun. Largely focus on an aspect that add to your resume, add to your personality in a long term. So that's all I wanted to discuss with you. And so there is one important philosopher, as I teach ethics, so I want to conclude with one of the important philosophers statement, Musonius Rufus, that if you accomplish something good with hard work, labor passes quickly but the good endures. If you do something shameful in pursuit of pleasure, pleasure passes quickly, the shame endures. And it's very very awesome quote, guys, that if you accomplish something with hard work, आज आपको एफर्ट लगे, आपको लगे बाकी फ्रेंड्स मेरे जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं और आई एम इन्वेस्टिंग माई एनर्जी, ट्रस्ट मी गाइज, if you accomplish something good with hard work, labor will pass quickly, the good endures. Okay, I have seen my wife, she worked hard, now she cracked the exam. Okay, one of the safest job in the world or in India. कुछ भी कोई बड़ा स्कैम, स्कैंडल, कुछ भी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए, दिस IAS, IPS, IRS, all these jobs are the most safest. The power you enjoy, the facilities you enjoy, okay, and all wealth and salary you are going to get, okay, कंसिस्टेंटली. कोई फिर एक्स्ट्रा वो जो स्ट्रेस, टारगेट, पूरी जिंदगी भर की स्ट्रगल निकल जाएगी. पुट एफर्ट्स नाउ, फिर जिंदगी भर यू डोंट हैव टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट और स्ट्रगल. ओके, सो लेबर विल पास क्विकली, गुड विल एंड्योर, एंड यू विल बी एबल टू एंजॉय लॉट. Okay, pain will pass quickly, only pleasure will endure for a lifetime. And so take efforts and utilize this time, energy very productively. And if you do something shameful in pursuit of the pleasure, then pleasure passes quickly, the shame endures, the guilt endures. And that's why फिर 4-5 साल बाद समझ में आया that I should have worked then, I should have acted then, I should have acted proactively. Okay, तो वो पूरी जिंदगी भर की स्ट्रगल कंपेयर टू दैट, आई सीन इतने सारे मेरे ब्यूरोक्रेट्स या मेरे वाइफ के भी जो फ्रेंड्स हैं, ऑल ओके एंजॉइंग एंजॉय देयर लाइफ एंड वेरी रिलैक्स्ड विद देयर लाइफ. वो 3-4 साल का जो स्ट्रगल एफर्ट दे पुट, ओके, पूरी जिंदगी भर आगे के 30-40 साल के, यू चेंज द डेस्टिनी ऑफ योर ओन सेल्फ, ऑफ योर फैमिली, ऑफ योर किड्स, everyone's destiny. And so guys, take this lecture seriously, re-listen to it, all these points, okay, and start working on them. Trust me, it will help you develop tremendously or productively. So that's all for now, guys. Thanks for listening, and stay tuned to my YouTube channel, Darshanik IAS by Kadam Sir. Many more recordings I have uploaded, strategy based lectures. Do check them out also. And also join me on UPSC Ethics 4 Telegram channel to stay updated, to download these notes, everything. And on my Darshanik app by Kadam Sir, I will be launching my ethics course from around 10th of Jan. Okay, so you can download this app, Darshanik by Kadam Sir, from Google Play App Store. And there you can enroll for this classes, ethics classes. Soon I will be launching essay class also. And I told you that will be one-stop solution. You don't have to read anything other than my classes for essay and ethics. These 2 papers will totally be covered. Whatever discussion I take in the class and notes I will provide, that will be your ultimate solution. So thanks for listening, guys, and stay tuned.